students, I'm your biology teacher Suman Chaudhary, and from today we are going to start our new chapter, which is third chapter, human reproduction. But before starting the chapter, we should know the some terminology which is related to this chapter. That is, first जैसे इस chapter में हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. As we know, the human is sexually reproduced and it is viviparous. Viviparous means who laying baby, जो कि बेबी को बर्थ देते हैं, उन एनिमल्स को हम विविपैरस कहते हैं. जो प्यूबर्टी है वहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फेज है वो स्टार्ट होती है. प्यूबर्टी मीन्स द एज वेयर द एग इन फीमेल एंड स्पर्म्स इन मेल्स आर स्टार्ट टू फॉर्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ sperms and ova in male and female respectively known as spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis means the formation of sperms and or oogenesis means the formation of ova or egg are known as oogenesis. That is, and that process is commonly known as gametogenesis. Next is insemination. Insemination means transfer of sperm into the female vagina or female genital tract is known as insemination. Fertilization is the process of fusion of male and female gamete after the zygote is formed, and after 8-week development the zygote will convert it into embryo. Embryo 8 week के बाद वो from the 9th month तक फोइटस कहलाता है, एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी टू द 4 वीक इट इज नोन एज इन्फेंट्स, जो नवजात शिशु जिसको हम हिंदी में कहते हैं. इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन का मतलब है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फेज. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो is embedded into the uterus wall or uterine wall. That is known as implantation, where all the embryonic development are going to be happen. Next is gestation. Gestation means the whole time in which the embryonic development will completed. That is known as gestation period. Next is parturition. Parturition is the process of baby birth, यानी कि इसमें डिलीवरी ऑफ बेबी की प्रोसेस होती है, जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं. सो दीज आर द टर्म्स जो हम कि इस चैप्टर में कई बार यूज करेंगे, सो वी शुड नो अबाउट देम. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर मेन टॉपिक, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्मेटोजेनेसिस. मीन्स हम मेल में गैमीट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके अंदर जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे वो है स्पर्मेटोजेनेसिस. Genesis means formation of sperm or male gamete. Okay, so the male reproductive system, the human male reproductive system is consist of 4 parts. First is paired testes. Number 2 is associated ducts. Number 3 is associated glands. And 4th one is external genitalia. So let's start. The human male reproductive system is made up with the help of these 4 parts. First are paired testes, means testes are present in male, which is the male reproductive system, and वो paired होते हैं. इसके साथ ही associated glands होंगी, associated ducts होंगी, और 4 parts होगा external genitalia.
सो नाउ किस तरीके से ये सारे जो ऑर्गन हैं ये एसोसिएटेड होकर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को करते हैं, चलिए देखते हैं। ये है आपकी टेस्टिस, और जो ह्यूमन टेस्टिस का एक मेन कैरेक्टर है, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द मेल बॉडी। मीन जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर इनकी प्रेजेंस होती है। दे आर लोकेटेड एट द आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिन कैविटी। और इस टाइप की टेस्टिस को हम कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिन, एब्डोमिनल टेस्टिस। Testes are surrounded by, they are present in a sac-like structure which is known as scrotum. Scrotum. इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती है वास डिफरेंस। यहाँ से होती है इसकी, ये है and this is the external genitalia. Now let's start all the structures in detail. As you know, these are testes and they are the paired structure. Testes are present inside the scrotum which is present outside of the abdominal cavity. This type of testes are known as extra abdominal testes. This is scrotum. Now this is open into the vas deferens. दिस इज वास डिफरेंट। जो इस टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जो स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, दे आर गोइंग थ्रू दिस डक्ट विच इज नोन एज वास डिफरेंस। दिस इज सेमाइनल वेसिकल। यहीं पर आपकी ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड यहीं पे होती है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, दिस इज योर एक्सटर्नल जेनेटेरिया। जेनेटेरिया पेनिस। यहीं पे आपकी एक और डक्ट होती है विच इज नोन एज बुल्बो इरिथ्रल डक्ट, जिसका की जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है। इरिथ्रल डक्ट, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ से जो हमारे वास डिफरेंस स्पर्म यानी कि जो फॉर्मेशन टेस्टिस में हुई है वो यहाँ से रन करते हैं। यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट में वो पोर होते हैं, बट यहाँ पर हमारे सेमिनल वेसिकल का भी एक सिक्रीशन होता है जो कि हमारे इजैकुलेटरी डक्ट में सिक्रीट होता है। यानी कि यहाँ तक सिर्फ स्पर्म थे, बट आफ्टर द सेमिनल वेसिकल इन दिस डक्ट टू सिक्रीशंस आर प्रेजेंट and after that they will run from this vas deferens and get outside from the body from the external genitalia. अब हम इस प्रोसेस को जब हम टेस्टिस की टीएस को एलएस करेंगे इसकी, तो हमें इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो मैं रेस कर देती हूँ। अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं सारी।
we are talking about the LS of testes. यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. देखिए, ये जो हमारा बाहर वाला पोर्शन है, ये वाली जो लेयर है, ये जो मैंने बनाई है, दिस इज कॉल्ड टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल. टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल. हर एक टेस्टिस के अंदर इनका जो नंबर है वो लगभग 250 के आसपास होता है, यानी कि एक टेस्टिस में. इनसाइड द टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल, यहाँ पर ये जो मैंने इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाए हैं, दे आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. हर एक टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर होता है 1 to 3. यानी कि हर एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस का नंबर कितना हुआ? 250 into 3, अप्रोक्स 750 के आसपास इनका नंबर हुआ. अब क्या होता है, ये है आपकी रेडी टेस्टिस, ये है आपकी वासा एफरेंशिया, दिस इज वास डिफरेंस. ठीक. अब हम इस स्ट्रक्चर को कैसे देखेंगे? जब हम ये वाली प्रोसेस, क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है दैट इज इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और बेसिकली इन द टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल. जब हम अपने इस स्ट्रक्चर को बाहर लेके जाते हैं और इसके डिटेल को देखते हैं, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है. मैंने ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाई है, उसकी टीएस मैंने कट करी है. यहाँ पर क्या होता है कि ये वाली जो सेल्स हैं जो छोटी छोटी हैं, ये तो हैं आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये वाली. लेकिन ये जो बड़ी बड़ी सेल्स हैं इनका नाम है सर्टोलाई सेल्स एंड दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अब क्या होता है, जो हमारी ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये स्पर्म की फॉर्मेशन करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन की प्रोसेस को करती हैं. जो स्पर्म फॉर्म होते हैं, जो सर्टोलाई सेल है, वो इनको नरिशमेंट देती हैं. यानी कि जो स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी सेल्स बनाई हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड नरिश द डेवलपिंग स्पर्म्स विच सेल्स आर नोन एज सर्टोली सेल्स. आगे जिस तरीके की ये एक सर्टोली हमारी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ऐसे ही यहाँ पर भी है, ऐसे ही हमारी ये यहाँ पर भी है. अब ये मैंने क्यों बनाई है? ये इसलिए बनाई है क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस हो रही होती है, जो कि हार्मोन सिक्रीशन का काम. अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो बात करी, लेकिन हमने यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन की तो बात की नहीं, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुई है. और उसकी फॉर्मेशन हो रही है इस जगह पर. एज यू कैन सी बिटवीन टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देयर इज ए स्पेस इज प्रेजेंट, और इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. और इन सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स. क्या कहते हैं? लीडिंग सेल्स. तो एज यू कैन सी, एज यू नाउ यू नो, द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट in male reproductive system is formed by the interstitial cells or the leading cells. Same thing, दोनों में ही एक ही बात है. अब जो हमारी
लीडिंग सेल्स हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन को प्रमोट करती हैं, उनको फॉर्म करती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पूरे के पूरे मेल बॉडी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फॉर्म करने के लिए इनको मैसेज आता है, जो आपका ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वो गोनेडोट्रोपिन GnRH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन फॉर्म करती हैं। और ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मैसेज भेजती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ FSH एंड LH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और उसके बाद ये मैसेज पहुंचता है हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स के बाद, एंड आफ्टर दैट दे आर स्टार्टिंग टू फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन। अगर मैं अब यहाँ से क्या हुआ, हमारे स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई, एंड ये इस तरह से यहाँ से रास्ते से जाएंगे रेटिटेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, और उसके बाद वास डिफरेंस से होते हुए ये आपके जो हमारी पेनिस है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट, अब यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को बहुत क्विकली समझेंगे। जैसे जो हमारे स्पर्म की फॉर्मेशन है, उसके लिए जो मदर सेल का काम करती है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें कि जो प्लॉइडी होती है, क्रोमोसोम नंबर होता है दैट इज 2n। इसको हम मदर सेल भी कह सकते हैं, यानी कि स्पर्म मदर सेल हु फॉर्म द स्पर्म्स। नाउ इट विल अंडरगो द माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस इज द इक्वली सेल डिवीजन जिसमें कि क्रोमोसोम का जो नंबर है, यानी यहाँ पर भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी 46 है, और जो हमारे इधर ये जो स्पर्मेटोगोनिया और बने हैं, इनके अंदर भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी 46 है। नाउ अभी तक हमने देखा कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्रोथ हो रही है, यानी नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजेस विच इज नोन एज द ग्रोथ फेज। अब हमारी इनमें से जो एक स्पर्मेटोगोनिया है वो अपने साइज को इंक्रीज करती है, और उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसके अंदर भी जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज सेम 46। नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज अंडरगो द मियोसिस फर्स्ट। अब यहाँ पर ये 2 स्पर्मेटोसाइट्स बना रही है जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, बट यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 23 हो गया, बिकॉज यहाँ मियोसिस हो रहा है, एंड एज वी नो मियोसिस इज अ रिडक्शनल सेल डिवीजन वेयर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन डिक्रीज, कैन हाफ. Now meiosis second will occur into the secondary spermatocytes. Now they will convert into spermatids. As you can see, the sperms formation process is getting start, but ये कहीं से भी sperm जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद एक प्रोसेस होती है विच इज़ नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके बाद कि हमारी ये जो मैच्योर स्पर्मेटिड्स थे ये कुछ इस तरह की प्रोसेस के दिखने, इस तरह के स्ट्रक्चर के दिखने लगते हैं. एज यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. जब डिटेल में बनाएंगे तो बताएंगे. नाउ दे आर नोन एज स्पर्मेटोजोआ. अब स्पर्मेटोजोआ के बाद यानी कि यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन हो चुकी है. नाउ दे आर रेडी टू कम आउट फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. एज यू नो मैंने पहले जो डायग्राम बनाया था जहाँ से कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो वास डिफरेंस और रेटिटेस्टिस से बाहर जा रहे थे. दैट इज नोन एज दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन, यानी कि स्पर्म्स कम आउट फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब मैं यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट बताऊंगी जिससे कि स्पर्म किस तरह से बाहर आते हैं. Now we will discuss about the path of sperm through the male body, how they form, where they form, and how they will come out from one organ or one duct to another duct. First, from the seminiferous tubule, they will open, and seminiferous tubule will open into reticestis. After the reticestis, it will open into vas efferentia. Vas efferentia open होती है epididymis के अंदर, और वहाँ से vas deferens, then ejaculatory duct, जहाँ पर कि आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सिक्रीशन था दे आर स्पर्म्स, और दूसरी तरफ आपके
जो सेमाइनल वेसिकल था उसका सिक्रीशन था, और दोनों को मिला के हमने बोला था सीमेन। और यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा, देन थ्रू द पेनिस sperm will come out from the male body, or this is known as external genitalia. So it's all about the male reproductive system or spermatogenesis which we have discussed today. I hope you will all get understand. I try my level best. So thank you very much.